Good morning, children. This is your Bhagwat madam. Our next topic of chapter refraction of light is numerical. अभी तक हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए हैं और पढ़े हैं, अब उसके न्यूमेरिकल करने का टाइम आ गया है. सो लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल. लिसन दिस केयरफुली. The first numerical is the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate the speed of light in glass and where the refractive index is given 1.5. So here it is given that the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का जो सिंबल होता है वो सी होता है. सी गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. एंड ऑल्सो गिवन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. मतलब किसी दूसरे मीडियम में हमको फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ लाइट. सो वी हैव रिटन v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू है. सो म्यू गिवन है 1.5. So V find out करना है. So which formula is going to use? The formula used will be mu equal to C by V. हम पहले ही पढ़ चुके हैं. So यहाँ पे जो given है that is mu and C and we have to calculate V. So substitute in the formula mu equal to C by V, that is V equal to C by न्यू में हमने सब्सटीट्यूट किया. सो V इक्वल टू हो जाएगा C, दैट इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय म्यू इज़ 1.5 एंड वी विल गेट 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर 2 मार्क क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन आवर सेकेंड न्यूमेरिकल. देखते हैं किस फॉर्मूले पर बेस्ड है. The speed of light in glass of refractive index 1.5 is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Calculates the speed in vacuum. So speed of light in glass. लाइट की स्पीड ग्लास में दी है, मतलब v. किसी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हम लेते हैं v. So it is given 2 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light in glass of refractive index 1.5. So mu is equal to 1.5 is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate the speed in vacuum. So vacuum और air के लिए C लिया जाता है. So C हमको calculate करना है. So which formula is going to be used? Formula used equal to, जैसे पहले किया था, C equal to mu into V और mu equal to C by V. So here we have to determine C. तो C equal to हो जाएगा mu into V, 1.5 into 2 into 10 to the power 8, that means 3 into 10 to the power 8 meter per second. So this will be our answer. Next, third numerical. The refractive index of material is √2. What will be the value of critical angle for it? So what is given? The refractive index of material, that means mu. Refractive index of material का symbol होता है mu. So mu is given √2. What will be the value of critical angle for it? Critical angle का symbol होता है IC. So mu given है और IC determine करना है. So which formula is going to use here? The formula used will be mu equal to 1 upon sin IC. So substitute all the given quantities. Mu is
रूट टू इक्वल टू 1/sin IC। अब रूट 2 को साइन के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, साइन के टर्म्स में रूट 2 को नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए 1/√2 हमने कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप में हमको ये करना पड़ेगा sin IC इक्वल टू 1/√2, मतलब हमने रिवर्स कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को रिवर्स कर दिया, तो हमको मिला sin IC इक्वल टू 1/√2। नाउ 1/√2 कैन बी इजीली रिटन एज sin 45 डिग्री। सो बोथ sides have sin, so we can write IC equal to 45 degree. So this will be the answer for the numerical. Now let's see next example. Fourth example. A fish appears at a depth of 1 meter. If the refractive index of water is 4/3, find the actual position of fish. A fish appears at a depth of 1 meter. मतलब एक्चुअल डेप्थ नहीं है, ये appears. A fish appears मतलब ये apparent डेप्थ है। apparent डेप्थ का सिंबल होता है h dash. So h dash is given 1 meter. A fish appears at a depth of 1 meter. If the refractive index of water mu given है 4/3, refractive index of water is 4/3, find the actual position of fish. Actual position का symbol है h. So this has to be determined. So which formula is going to use? Formula used will be mu equal to h by h dash. So substituting the formula, h find out करना है, तो h इक्वल टू हो जाएगा mu इंटू एच डैश. सो mu is 4/3 इंटू एच डैश इज 1, so 4/3 1.33 meter. So the actual position of fish will be 1.33 meter. Now this is completed our numerical section. Now let's start our next topic, which is very very important, and ये हमेशा 4 या 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए आता है बोर्ड एग्ज़ाम में. Refraction formula for a concave spherical mirror. Refraction formula for a concave spherical surface, not mirror. Mirror अपना हो गया है. So refraction formula, here I have written refraction formula at concave spherical surface. So ये देखिए एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, ये पूरा कॉन्केव है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है. प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट ओ रखी है. इस ऑब्जेक्ट ओ से एक रे जाती है ओ ए के फॉर्म में, एंड इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. क्योंकि ये एयर है तो रेयर मीडियम होगा, दिस इज डेंसर मीडियम ग्लास. सो रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो इसको ये ऐसे जाना था सीधे, लेकिन ये ऐसे न जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है. नॉर्मल क्या है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ड्रॉ हुई है सी एंड डैश, दैट विल बी नॉर्मल. ये नॉर्मल क्यों होगा ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब यही रिफ्रैक्टेड रे जब पीछे की तरफ एक्सटेंड होती है तो एक और ये जो इंसिडेंट रे है उसके साथ में ये मिलके पोजीशन ऑफ इमेज देती है आई. सो इस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज फॉर्म होती है प्रिंसिपल एक्सिस पर आई के फॉर्म में. सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ए, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ए एन. सो दिस इज सपोज अल्फा, दिस एंगल इज सपोज बीटा. ये
इंसिडेंट रे से एंगल बन रहा है अल्फ़ा, ये रिफ्रैक्टेड रे से एंगल बन रहा है बीटा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल बन रहा है गामा सपोज। अब देखिए ये जो सी एन डैश है ये नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा आर। अगर ये आर है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला भी आर हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। ये इंसिडेंट रे है ओ ए, और ए सी नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो ओ ए इंसिडेंट रे, आई ए रिफ्रैक्टेड रे, एंड ए सी इज नॉर्मल टू द सरफेस। नाउ लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो एयर में रखी है। एयर में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है μ1, मतलब रेयर मीडियम का, और ग्लास जो कि डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज μ2 है। लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC अल्फ़ा प्लस आई इक्वल टू गामा, अल्फ़ा प्लस आई इक्वल टू गामा। ये कहाँ से हमने लिखा है? ये हमने यहाँ से लिखा है कि इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू इट्स अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल्स का सम उस ट्रायंगल के अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। सो अल्फ़ा प्लस आई इक्वल टू गामा। हमको चाहिए आई, सो आई इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा। गामा एंड अल्फ़ा आर वेरी स्मॉलर, सो दे कैन बी रिटन एज 10 गामा एंड 10 अल्फ़ा। सो यहाँ आई इक्वल टू हो जाएगा 10 गामा माइनस 10 अल्फ़ा। लेट दिस बी इक्वेशन 1। सिमिलरली अभी ऑब्जेक्ट के साथ का ट्रायंगल लिया था। नाउ लेट्स टेक द ट्रायंगल विथ इमेज, दैट इज ट्रायंगल AIC। इसमें भी वही क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा, बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा। सो आर इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा, फाइनली आर इक्वल टू 10 गामा माइनस 10 बीटा। लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब देखिए बाय स्नेल्स लॉ वी हैव साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 μ2, 1 μ2, 1 μ2 इक्वल टू होता है μ2 अपॉन μ1। ये हम सब पहले देख चुके हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। Now again we have some imagination, that is I and R, both the angles are very small, so sin I can be written as nearly equal to I and sin R can be written as R. So यहाँ पे जो μ1 sin I था उसकी जगह μ1 I हो जाएगा और sin R की जगह R हो जाएगा। So μ1 I equal to μ2 R. Now यहाँ से I इक्वल टू 10 गामा माइनस 10 अल्फ़ा था। अब 10 गामा, ये गामा है, सो ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। सो 10 गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 10 गामा हो जाएगा AN अपॉन CN। सो I इक्वल टू AN अपॉन NC। उसी तरह से 10 अल्फ़ा हो जाएगा, 10 अल्फ़ा परपेंडिकुलर मतलब AN डिवाइडेड बाय बेस NO। उसी तरह से R को भी हमने इस लिख लिया है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, एंड दीज वैल्यूज़ वी आर सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 3। सो μ1 इंटू आई की जगह जो हमने फाइंड आउट किया था वो रखा, इक्वल टू μ2 इंटू आर की जगह जो फाइंड आउट किया था वो रख दिया।
अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से देखिए ए एन लिया जो कि कैंसिल हो गया, सो ए एन कैंसिल्स। नेक्स्ट स्टेप वी हैव म्यू वन इंटू 1 अब देखिए एन सी एन पॉइंट एंड पी पॉइंट्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, सो एन जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर हम पी लिख सकते हैं। सो एन सी की जगह हम लिख सकते हैं पी सी, एन आई की जगह हो जाएगा पी आई और एन ओ की जगह हो जाएगा पी ओ। सो ये हमने यहाँ पे यही चीज़ें सब पी के टर्म्स में लिख ली हैं। नाउ सब्सटीट्यूटिंग विथ सिम्बॉल्स, म्यू वन इंटू पी सी देखिए क्या था, पी सी दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड टूवर्ड्स लेफ्ट, सो इट विल बी माइनस आर। सो म्यू वन इंटू 1 माइनस आर माइनस 1 पी ओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, सो दैट विल बी माइनस यू, सो माइनस 1/u इक्वल टू म्यू टू इंटू 1 पी सी इज अगेन माइनस आर माइनस 1 पी ओ इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सो माइनस पी आई, सो माइनस 1/v। अब ब्रैकेट ओपन किया, सो यहाँ पर आइए देखिए ब्रैकेट ओपन किया, माइनस म्यू 1/r प्लस म्यू 1/u इक्वल टू माइनस म्यू 2/r प्लस म्यू 2/v। जब आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तब उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। नाउ वी हैव कलेक्टेड द सेम टर्म्स, मतलब जहाँ पे r है एज ए डिनोमिनेटर वहाँ पे हमने सेम टर्म्स को कलेक्ट कर लिया है। सो म्यू 2/r को सिर्फ लेकर गए इस r के पास में, तो माइनस म्यू 2/r हो जाएगा प्लस, सो म्यू 2/r माइनस म्यू 1/r, और इस म्यू 1/u को सिर्फ लेकर गए तो माइनस हो जाएगा ये। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक दिस। नाउ वी हैव टेकन r कॉमन लेफ्ट हैंड साइड से, सो एलसीएम अगर r लिया तो ये हो जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u, सो म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1/r। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ स्फेरिकल सरफेस। अब देखिए अगर रेरर मीडियम के लिए जो म्यू 1 था उसको अगर हम 1 लें, मतलब अगर ऑब्जेक्ट जो है एयर में रखी है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू ले तो यही रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ये यहाँ इस तरह से मैग्नीफाइड हो जाएगा। म्यू 2/v की जगह आ जाएगा म्यू अपॉन v माइनस म्यू 1/u की जगह आ जाएगा 1/u इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 की जगह आ जाएगा म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। सो दिस विल बी द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ spherical surface. That's all for today. Good day and goodbye.